Okay. Now I'll start with Kritika. Why should we hire you? वॉइस आ रही है क्या? हाँ आ रही है. You should hire me because I am a quick learner, confident, and passionate about becoming a cabin crew member. I have good communication skills, a positive attitude, and I enjoy helping people. I can stay calm under pressure, work well in a team, and I am always willing to learn and improve. If I get this opportunity, I will give my best to provide excellent services and represent the airline professionally. Thank you. Okay. How it sounded to you all? The answer. The answer was good, the lines are good, but the way she is speaking like this. Yeah. So the delivery of the answer is not to the point. I think if you are answering, then keep a smiling face. Just sit straight and look at the camera. वो ना वॉइस नहीं आ रही थी तो Yeah, इसलिए. but Bhavna is right. I said this before that you should behave like a cabin crew or like you are giving interview. Like think like I am an interviewer. I am taking your interview and present yourself like that. When you will practice it, you will not find it difficult when the real interview happens. So that's the thing. See Bhavna's camera, how it is like fixed somewhere, placed somewhere, and she is now free from this camera thing, phone thing, and she is speaking freely. The same goes with Salu, right? It is fixed. Even mine, I have placed it and I'm speaking. I'm doing my hand movement and everything. So you should always place your camera somewhere so that it not like disturb you while presenting yourself or from like whole session. So that's the thing. Like behave, present yourself like the cabin crew. Interview, are doing it. You are like going for an interview. Present yourself that way. That's how you are going to learn, and you're not going to make mistakes. Because Bhavna ma'am also said this that uh, answer is some other part, but the presentation of you, like the personality which shows outside, it is really important. When you are not like freely presentable, not available, or you like you sound like boring person, uninteresting, or overconfident or underconfident, they are going to reject you without thinking for a moment. So that's the thing. First, you need to work on your personality, your presentation, because we all have heard that. What was that I line? also noticed one thing. Shalu is not answering the answer, but the way of her presentation, the body language is really amazing. And I was just thinking that a cabin crew is mentioning or highlighting something and giving instructions. So her voice is so sharp and clean. So I really like the way she answered. Maybe the answer is whatever X, Y, Z. I don't want to comment on her answer, but the way she presented was really commendable. Exactly. Okay. So next question is for Anushka. Can you unmute yourself? Okay. Why did you decide? Okay, that was not it. Why do you want to join the aviation industry? Yes, Dee. Okay, I'm repeating the question so that you can like get time to answer it. So the question is, why do you want to join the aviation industry? I want to join aviation industry because I I love to helping people and 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 providing excellent service. I love I also love to
I also love the opportunity to talk other places people. That's it. Yes. Okay. Anushka, the like what to say? You didn't understand the concept. Like whenever the question comes, na any type of questions, like particularly I ask you, why do you want to join the aviation industry? So your mind should quickly work on that. What are the good things about aviation? And just speak about that, what you find very beautiful, what you find attractive about the aviation industry. And you should always think about what recruiter is expecting from you. Recruiter is of course expecting that you should highlight the aviation good things, that growth, the service which they provide, and such type of thing. So you should talk about that thing. They want to hear good things about the aviation industry, and you have to answer the same. It's not like I like interacting with different people, I like traveling. No, don't make this mistake. Speak about the growth. Firstly, you should learn about the aviation things. Whatever airline, just take knowledge from that thing and just write it down somewhere, make a note of it, and then take some words from it, like aviation words, which will really help you. That's it. You should talk about that. The aviation industry is something, it's so different. It just combine many roles. I get the opportunity to interact with people, but it also gives me an opportunity to be a caretaker in a flight, being available for other people. And because I am a benevolent person, a caring person, it just automatically get my attention to join aviation industry and such type of things. Just present that way. Like match your personality with the aviation goals or aviation things. That's it. Take help from ChatGPT. Great work. Okay. Next, एंड ऑल्सो यू आर मेकिंग आई मूवमेंट्स, लाइक ऊपर देख रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उस पर भी वर्क करना पड़ेगा. सेम व्हाट आई सेड टू कृतिका, यू शुड प्लेस योर कैमरा समवेयर, बिहेव लाइक, present yourself like you are giving an interview from the next time. Okay, and it will all fall in a place if you will behave, if you will believe that I'm giving a proper interview, so I should behave in a manner, I should make movements, I should maintain contact, eye contact, so it will all go with that flow. So that's it. Next, okay, Salu, are you ready? Okay, just give me a moment. I haven't written the question, so that's why I'm reading it. What inspired you to become a cabin crew? Okay, I think Salu is not ready now, so Bhavna, can you answer the same question? What inspired you to become a cabin crew? Sure. So the things that inspires me the most is I already have an experience with customer service. I know how to make people feel valued and heard. I already worked in an environment that comes with the different aspects of the customer behalf. So I believe I should work in aviation industry where I just not only work in the four walls, I just work in various countries with the diverse people. Aviation is the industry where I cannot be only a cabin crew member. I can be a service provider, caretaker, lifesaver, fighter, doctor, and even a radiologist in the case of emergency. It is the aviation that brings me a lot of opportunities to work, and I also have
the skills that is important in aviation industry. That is, I have strong communication skills, adaptability, teamwork, time management, attention to detail, and the ability to remain calm and professional in challenging situations. And I am active, open-minded, and people-oriented person. And I am confident that with my passion for aviation, मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है. Okay, so I am confident that with my passion for aviation, willingness to learn, and that positively contribute to your airline. So that's why I want to join the aviation industry and work there on that. Thank you. Okay, great. Like, is there anyone who didn't like Bhavna's answer? All good. Like, मेजर पॉइंट्स आपने मेंशन किए, आपने हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर लिया. लाइक उसका जो कैबिन क्रू का रोल होता है वो भी आपने बताया, आप में क्या खूबियां हैं वो भी आपने हाईलाइट की. आप एविएशन इंडस्ट्री को क्या अगर कैबिन क्रू बनते हो तो आप क्या दे सकते हो अपने साइड से, आपकी क्वालिटी, सारी चीज़ मेंशन किए. तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा आंसर था. आपने ग्रेट लाइक अच्छे वर्ड्स वहाँ पे भी इंक्लूड किए. लाइक 4 something was that 4 pillar or something. 4 walls. हाँ 4 walls. हाँ वो भी एक मतलब काइंड ऑफ फ्रेज है that we can use also in our answers. आप लोग भी कर सकते हैं. कि जैसे मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था तो हॉस्पिटैलिटी से था या कस्टमर सर्विस से, तो मेरे से ये क्रॉस क्वेश्चन होने वाला है कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी. तो मेरे को यही मैंने प्रिपेयर किया हुआ है that I am capable enough that I can not only work under the 4 walls, I can work around the world. तो ये एक सेइंग है, मतलब फ्रेज है. गुड, बहुत अच्छा आंसर था. Okay. शालू, आर यू रेडी नाउ? दीदी अभी तक मैंने अपने आंसर प्रिपेयर नहीं किया, मतलब मैं 1-2 दिन में कर लूंगी क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिला था. लाइक मैंने आपको बताया था मेरे घर में कंस्ट्रक्शन वर्क है, बट 2-3 दिन में मैं पक्का प्रिपेयर कर लूंगी. इसलिए मैंने अभी ChatGPT से निकाला है, तो क्या मैं वो बता दूं? Okay. One of my biggest inspiration was the movie Ninja. After watching it, I realized that cabin crew is not about serving food or traveling. It's a profession that requires responsibility, courage, and care for passengers. The way Ninja Banon stayed calm and put passengers' safety first really inspired me. Since then, I've watched to build a career where I can help people and represent an airline with professionalism. So that is my inspiration. Very good. But is it like you have read the answer? Okay. Yet I'm not preparing any answer. That's why I'm taking out from the ChatGPT and tell you. The answer was all good, but you should try to like Yes. speak by yourself without looking into the script. Okay. अभी कोई भी आंसर मैंने अभी कोई भी प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. हाँ देखो, हम लोगों ने जब ये सेशन स्टार्ट किया था ना, उस टाइम सभी को यहाँ पे रीड करके ही बोलते थे, है ना, देख के ही बोलते थे. आई थिंक उस टाइम पे आपने क्लासेस नहीं लिया था, इसलिए अभी आप क्लासेस ले रहे हो तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्टीज आ रही है. अभी यहाँ पे ममता है, भावना है, इन्होंने अभी स्क्रिप्ट नहीं देखा, इन्होंने अभी देख के नहीं बोला, क्योंकि ये अब प्रैक्टिस हो चुका है ना. तो ये प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा. ममता भी पहले देख के बोलती थी, भावना भी, मैं भी बोलती थी, बट अब हो गया है कि नहीं, हमें खुद से ट्राई करना है. जो भी आंसर्स है हम लोग खुद से ही बोलेंगे, जो भी जितना भी बोल पाए, बट बिना देख के बोलना है. तो आई थिंक हाँ, बट आपका ये सेकेंड क्लास है, राइट? तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. आप थोड़ा सा नर्वस हो, टाइम लगेगा ऑफकोर्स. आप बोल रहे हो ठीक है, देख के बोल रहे हो ठीक है, बट इसके बाद आप खुद में ट्राई करो आंसर, वही आंसर, सेम आंसर को. और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो यही प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस, रिकॉर्ड योर सेल्फ, ट्राई करो, सही हो जाएगा सारा. Okay. अच्छा, लाइक अभी हम लोग 4 ही है,
चेतना कभी आ रही कभी जा रही है, ठीक है। ओके चेतना, कैन यू स्पीक? आर यू रेडी टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ अस? ओके फाइन। ओके डू यू पर मुझे क्वेश्चन था, मतलब पता नहीं क्या हो गया यार, 1-2 दिन से ना मुझे ऐसे हो गया है, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। पहले मतलब मैं टारगेट बना के रखती हूँ, मैंने 4 क्वेश्चंस करने, 4 क्वेश्चन, अब वो ना 2 दिन से 4 क्वेश्चंस ऐसे ही पड़े हुए हैं, ना ही वो मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। मतलब शायद मैं अब अपनी हेल्थ की तरफ ना इतना ज्यादा ध्यान दे रही हूँ कि मेरी बॉडी इतनी थक जाती है ना, तो मेरा पढ़ने का ही नहीं मन कर रहा। मुझे इसको सोल्यूशन चाहिए इसका, मतलब मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लाइक आपने आंसर में मेंशन किया ना, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और एक मोटिवेशन आना चाहिए पढ़ने के लिए। सेम मेरे साथ भी होता है, एक बार अगर छोड़ देती हूँ ना, फिर लगता है यार नहीं, मन ही नहीं लगता है, फिर कैसे वही ट्रैक पे आओ लगता है। बट फिर सोचती हूँ नहीं यार नहीं करूँगी, फिर कैसे बनूँगी, फिर कैसे हेल्प करूँगी पापा का, मम्मी का, क्या होगा। फिर थोड़ा सा मोटिवेशन वाला वीडियो वगैरह या फिर कुछ लाइव्स देख लेती हूँ, जैसे मैं ग्रुप पे भी आजकल भेजना स्टार्ट कर रही हूँ, तो वही कर लेती हूँ। फिर अब तो मतलब ऐसे हो गया ना, पता नहीं क्यों, या तो शायद घर रह के ऐसी चीजें हो रही है या क्या हो रहा है कि मतलब इंस्टाग्राम की इतनी आदत हो गई है ना। तो कल तो मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया था, मैंने कहा मैंने नहीं चलाना, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। फिर आज पता नहीं क्या हुआ, अब मैंने फिर से इंस्टॉल कर लिया। तो मेरा 1-2 दिन से ना पढ़ने का बिल्कुल इतना मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो मेरे वो क्वेश्चंस, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये इंट्रोडक्टरी पार्ट छोड़ के मुझे पीआई पे जंप करना चाहिए। बट फिर मैं सोचूं फिर मेरे ये क्वेश्चंस रह जाएंगे अनप्रिपेयर्ड। फिर मुझे अगर जैसे आपने आज वो डेली लाइफ वाला रूटीन का पूछा, तो वही वाले क्वेश्चंस है, उसमें एक ये क्वेश्चन है और एक यही है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। तो मैंने वो ना प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, तो अब कोई पूछेगा तो मैं अपने आप से बना के बोलूंगी, तो उसमें वो ऑब्वियसली वो गलत होने के भी चांसेस हैं। तो मेरे को प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब टाइम तो ऑब्वियसली मिल रहा है बट मन नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द रीजन। ओके मैं अपना बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। मैंने ना इंस्टाग्राम में 2 अकाउंट है, ठीक है। एक कैबिन जो मेरा यूट्यूब का चैनल है ना, उससे मैंने वो ओपन किया, उस पर वो सारे वीडियोस डालती हूँ। एक जो है वो मेरा पर्सनल आईडी है, जिस पे ऐसे पोस्ट वोस्ट या फिर कुछ रील्स। तो मैंने क्या करके रखा है, जो मेरा ये कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो चैनल है ना, उस पर मैंने पूरा फीड भर दिया है कि मुझे बस मोटिवेशनल वाले, कैबिन क्रू से रिलेटेड कुछ लर्निंग थिंग्स, फ्रेजेस, बस यही सब मिलेंगे उस वाले मेरे अकाउंट पे। नेक्स्ट जो मेरा पर्सनल है, उस पर ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए कुछ फनी कॉमेडी ये सब। तो मैं जब जैसा मूड करता है ना, या जिस चीज़ की नीड होती है, तो उस तरह से देखती हूँ। लाइक जैसे कि मन नहीं कर रहा है बट पढ़ना है, प्रिपेयर तो करना है, ध्यान देना पड़ेगा, मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है, करना पड़ेगा, बट माइंड जा रहा है कि मैं कॉमेडी वीडियो देखूँ, इंटरटेनमेंट वाला देखूँ। तो नहीं, माइंड को सेट करके मैं वो वाले ये आईडी पे चली जाती हूँ और फिर वहाँ स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है। फिर मुझे ईडियम्स दिखेंगे, फ्रेजेस दिखेंगे, कुछ मोटिवेशनल लाइन्स वाले रील्स आएंगे, फिर आ जाता है मोटिवेशन, अब तो पढ़ना पड़ेगा यार, फिर वो हो जाता है। फिर जब माइंड थोड़ा लाइक बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, या लगता है नहीं अब थोड़ा सा इससे निकल के थोड़ा सा अब इंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा सा फ्री करना है माइंड, तो फिर आ जाती हूँ वही पर्सनल अकाउंट पे, उस पर फिर देखती हूँ रील्स, ठीक है। ऐसा तो ऐसा बनाओ कि लाइक ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कितना सराउंड कर सकते हो इस, अगर आप पैशनेट हो, बनना है इंग्लिश में, आपको लाइक फ्लुएंसी चाहिए, सीखना है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। 2 अकाउंट बनाओ, मेरी तरह बनाओ, और एक अकाउंट को पूरी तरह से प्रोफेशनल रख दो, दूसरे को बस ऐसे ही टाइम पास, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, फ्री माइंड करने के लिए ये नहीं, जो करो। मेरा पर्सनल अकाउंट है ना, उस पे भी आते तो यही है जो आप क्लासेस में भेजते हो ना। हाँ। तो वो मेरे पास भी आते हैं फ्रेजेस, मैं भी वैसे पढ़ती रहती हूँ। फिर एयर हॉस्टेस की वो वीडियोस आ जाएंगी, उससे
बहुत होगा यार, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी करना है, तो वो चीज भी। बट पता नहीं क्यों यार, फिर मुझे ऐसे लगता है चल ठीक है, फिर मैं रील्स में इतना ज्यादा घुस जाती हूँ, इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। फिर शाम हो जाती है, फिर ऐसा लगता है चल ठीक है, मेरा दोबारा से वर्कआउट का टाइम हो गया, फिर से वर्कआउट किया, फिर बॉडी थक गई, फिर पढ़ने का मन नहीं है। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन चल रही तो है। ये होता है प्रोक्रास्टिनेशन से। एग्जैक्ट जब आया मेरे फीड पे, लाइक आपके फीड पे कैबिन क्रू का या हल्का भी मोटिवेशन मिला, कॉपी उठाओ, बैठ जाओ, उसके बाद लगेगा बैठ गई हूँ तो आप कर ही लेती हूँ तुरंत से। लाइक जहाँ पे भी जाना है जिससे सीखते हो, मैं तो चैट जीपीटी ऑन कर लूँगी, फटाक से कॉल वाला पे जाऊँगी, फिर बोलूँगी चैट जीपीटी बात करो। लाइक वो भी बोल सकते हो ना, माइंड नहीं मेरा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम थोड़ा सा बात करो, फिर वो बात करना स्टार्ट करेगा ना, फिर धीरे धीरे आप रील्स भूल जाओगे, फिर धीरे धीरे आप उसमें इंगेज हो जाओगे। फटाक से एक क्वेश्चन पूछ लो कैबिन क्रू से रिलेटेड, वो आंसर देगा, फिर आपको भी लाइक इच्छा होगी कि मैं भी आंसर दूँ, फिर ऐसे बढ़ जाएगा। तो ऐसे करना पड़ता है, डाइवर्ट ही इससे भी खेलना पड़ता है। ये तो है। करना पड़ेगा। हाँ, मान रही हूँ कि आप थक जाते हो वर्कआउट से, फिर मन नहीं करता है, उस टाइम के लिए ठीक है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा हाँ, feel मतलब चाहिए। बॉडी इतनी हो जाती है ना फ्रस्ट्रेट, अगर मैं कुछ याद भी करने बैठती हूँ ना, तो वो भी याद नहीं होता। मैं 15 मिनट एक ही क्वेश्चन देखती रहती हूँ, मन नहीं करेगा कुछ लर्न करने का, कुछ ग्रास्प नहीं होगा माइंड में, तो फिर बस यही होता है। ऐसे टाइम में पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ। आपका माइंड ही प्रिपेयर नहीं है, आप थके हुए हो, तो वो कोई चीज़ को लेगा भी नहीं, है ना, उस पर वर्क भी नहीं करेगा। तो ऐसे टाइम में स्किप ही कर दो, मैं भी यही कर देती हूँ। आज का मेरा दिन खराब हो गया या कुछ, अब 2 मिनट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं जाएगा, उससे अच्छा आज का दिन मैं पूरा ही वेस्ट कर लूँगी, लेकिन कल का दिन जो आने वाला है ना, उस पर मुझे फोकस करना है कि आज का जो मैंने बर्बाद कर लिया, जो भी गया मेरा, वो कल मुझे कवर करना है, ये चीज़ होना चाहिए, है ना। तो इसका फिर रूटीन, माइंड ऐसा, माइंडसेट ऐसा बनाओ ना कि मैंने बोला खुद को ऐसा सराउंड कर लो, इतना दिमाग में फिक्स कर लो कि कैबिन क्रू बनना है तो बनना है। अब बनना है तो बस ये नहीं कि बस बनना है, उसका आपको पता है कि क्या क्या करना होगा, हर एक पे लग जाओ, तभी हो पाएगा।